So in the last video, we have discussed what is the greedy algorithm and what are the different steps to solve a greedy algorithm. So now we will take a problem. That problem is known as your activity selection problem. Activity selection problem. That problem is solved with help of the greedy algorithm approach. So first we will discuss what is the activity selection problem. So in this problem we have given the n number of activity. So n number of activity, so we are denoting the activity by notation a1, a2 up to an. So these are your n number of activity, means we have given the a set, that set is consist with the n number of activity and we are simply represent this activity by the a notation. So a1 is the first activity, a2 is the second activity and last activity will simply your an. So the activity, suppose करो a1 activity, so that activity having a starting time and as well as having the finish time, means each activity having a starting time as well as the finishing time. So means si, if we say we are using a variable si, so si is a starting time of the activity I, same fi, that is the finishing time of activity I. So means each activity having a starting time and having a finishing time. So what we have to find out, we have to find out the maximum number of compatible activity. So before discussing the output, we are simply come out what is your problem. We have given the n number of activity, so each activity having the starting time and finishing time, and we have to find out the maximum number of compatible activity. So we can take a general example of this problem also. Suppose we have given a schedule for your classes. We have given a timetable, so in for your lecture, so each lecture having a starting time and finishing time. So obvious है, suppose करो we will take example of the schedule of the Monday. So Monday we have the lecture from 9 to 1 and up to 9 to 1 and second slot is your 2 to 5. So suppose cover the first lecture is your 9 to 10. The second lecture will be your start with from 10 to 11. So the first lecture, the starting time is your 9 o'clock, the finishing time is your 10 o'clock. The second lecture, starting time is your 10 o'clock, finishing time is your 11 o'clock, and so on. So the first lecture is compatible with the second lecture, means जब आपका फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट होगा उसके बाद आपका सेकेंड लेक्चर स्टार्ट होगा. 9 to 10 आपका फर्स्ट लेक्चर का है, 10 to 11 आपका सेकेंड लेक्चर का है. ऐसा नहीं है कि सपोज करो सेकेंड लेक्चर अगर मैं उसका स्टार्टिंग टाइम 9:30 कर देता हूँ तो देयर विल बी ए कोलिजन ऑफ योर फर्स्ट लेक्चर विद द सेकेंड लेक्चर. दैट मीन्स वी कैन से दैट the first lecture is not compatible with your second lecture. So same here, we have given the n number of activity, we can say n number of lecture, but here the in your timetable the lecture time is 1 hour, but here that time may be 1 hour, may be more than 1 hour. That depend on what is the starting time of that activity and what is the finishing time of that activity. So we have to find out the maximum number of compatible activity. So now I will come on the part. Now you will consider two activity are compatible if their interval don't overlap. Means अगर फर्स्ट एक्टिविटी का जो फिनिशिंग टाइम है ऑब्वियस है, देयर इज द स्टार्टिंग टाइम, देयर इज द फिनिशिंग टाइम ऑफ द फर्स्ट एक्टिविटी. सो जो सेकंड एक्टिविटी आई एम सेइंग दैट जो सेकंड एक्टिविटी का स्टार्टिंग टाइम एंड फिनिशिंग टाइम है वो अगर फर्स्ट एक्टिविटी से ओवरलैप नहीं होता तो उन दोनों एक्टिविटी को हम कॉम्पैटिबल एक्टिविटी
कहते हैं। So in this example, the activity is shown by a line. That is the starting time of that activity, that is the finishing time. So in the first part, suppose that is the first activity, that is the second activity. So first activity is compatible with your second activity. Why these are compatible? Because the finishing time of first activity is less than to the starting time of the second activity. If I will say, suppose this is your third activity, this is your third activity, so whether this activity is compatible with the first or second, so the answer will be no, because the finishing time of the first activity, that is the finishing time and that is the starting time. So that means there is a class, the finishing time of the first activity is greater than the starting time of the third activity, as well as the finishing time of the third activity is greater than to the starting time of the first activity. So we will say that two activities compatible, either the finishing time of the first activity is less than to the starting time of second activity, or we can say that the finishing time of the second activity is less than equal to the starting time of the first activity. So here if I will say that fourth activity, so third activity is compatible with your fourth activity. The last example is your, that is they are the three activity. So you are easily find out these three is the compatible activity. That is the finishing time of first activity and that is the starting time of next activity. That is the finishing time and that is the starting time of the third activity. So these three activities the compatible activity. So now you are clear about कि we have to find out the compatible activity and that must be the maximum number. So now we will take the example. In this example we are given the 11 activity. The numbering is your 1 2 3 4 up to 11. So each activity is given, each activity having a starting time and finishing time. If you say that the first activity उसका starting time is 1 and the finishing time is your 4. जो second activity है उसका starting time is your 3 and the finishing time is your 5. So if I will say find out whether the first activity is compatible with your second activity. क्या फर्स्ट एक्टिविटी आपकी सेकेंड एक्टिविटी के साथ compatible है? The answer is your no. Why no? Because the finishing time of the first activity is 4 and the starting time of the second activity is your 3. As well as you will simply say by second part कि the finishing time of the second activity is 5 and the starting time of the first activity is your 1. So we will always have check the both condition, A1 first to finish time of the first with the starting time of the second, or finishing time of the second activity with the starting time of the first activity. So in that case the first activity is not compatible with the second activity. If I am taking the second example, whether first activity is compatible with your fourth activity. क्या फर्स्ट एक्टिविटी फोर्थ एक्टिविटी के साथ compatible है? Then the answer is yes, because the first activity का finishing time आपका 4 है and जो फोर्थ एक्टिविटी है उसका स्टार्टिंग टाइम क्या दिया हुआ है आपको, that is the
5 that is compatible with the first activity. So answer is your the first activity is compatible with your fourth activity. So this is your example, this is your problem which we will solve out. We are given the 11 activity and each activity having the starting time and finishing time, and we have to find out the maximum number of compatible activity. So here we are taking two example. The first example is your A3, A9, A11. If you find out A3, A9, A11, so that is a set. So in that set there are the three activity. If you find out whether this activity is compatible or not, the answer will be your yes. The finishing time of the third activity is 6. The 9 activities start from 8 and 11 activities start from 12, which is almost same the finishing time of 9. So that means if the finishing time of one activity is same to the starting time of the another activity, that means that is compatible. Same example of you take the lecture timing. The lecture timing is given 9 to 10 and next lecture जो timing होती है 10 to 11 means the finishing time can be same starting time of another activity, so that is compatible. But जो आपके पास ये सेट है that is not the maximum number of set. यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ एक्टिविटी आपके पास कैलकुलेट होके आई हैं 3, बट हमें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैटिबल एक्टिविटी फाइंड आउट करना है. तो मैक्सिमम के लिए द सीक्वेंस इज सपोज करो हम इसी एग्जांपल में एक और सेट फाइंड आउट करते हैं जो कंपैटिबल है, दैट इज़ द A1, A4, A8, A11. तो इस पर्टिकुलर सेट में आपके पास नंबर ऑफ एक्टिविटी कितनी है, दैट इज़ द 4. So that is the maximum number of activity. Same there is another set come out if अगर you find out same example A2, A4, A9, 11, that is again the compatible, that is the same number of largest subset, that is the 4. So we either अगर आपके पास ये problem है, so the answer may become this one, so both are your correct answer. So I think you are clear about what is your problem, कि आपके पास problem क्या है, क्या आपको फाइंड आउट करना है, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉम्पैटिबल एक्टिविटी फाइंड आउट करना है. सो ट्राई जो ये एग्जांपल जो दिया हुआ है, ट्राई टू फाइंड आउट कि वेदर जो आपके पास ये नीचे 3 एक्टिविटी है वेदर दिस इज कॉम्पैटिबल और नॉट. सो हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉम्पैटिबल एक्टिविटी. सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, द फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर हमें कंसिस्ट करना होता है. तो यहाँ पे इसको कंसिस्ट करने के लिए वी हैव अज्यूम वन थिंग कि आपका जो फिनिशिंग टाइम होगा दैट फिनिशिंग टाइम इज गिवन इन द सॉर्टेड ऑर्डर. सो अगर आप ये जो प्रॉब्लम देखते हो, इस प्रॉब्लम में अगर हम फिनिशिंग टाइम देखते हैं, फिनिशिंग टाइम आपका द फिनिशिंग टाइम इज गिवन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर. फर्स्ट एक्टिविटी का फिनिश टाइम 4 है, नेक्स्ट का 5 है, देन 6, देन 7. तो जो हमें एक्टिविटी दी हुई है वो फिनिशिंग टाइम के अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में हमें वो वैल्यू हम अज्यूम करें कि वो हमें फिनिशिंग टाइम की सॉर्टेड ऑर्डर में वो एक्टिविटी गिवन है. सो नाउ अब हम इसका सबस्ट्रक्चर कैसे फाइंड आउट करें. तो सबस्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए हम एक एक्टिविटी मान लेते हैं कि हम एक एक्टिविटी ए के मान लेते हैं कि आपका जो ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा उस ऑप्टिमल सोल्यूशन में आपकी ए की एक्टिविटी इंक्लूड होगी ही होगी. अगर आपके पास आपके आंसर में ए की एक्टिविटी इंक्लूड होती है, दैट मीन्स अब हमारी जो प्रॉब्लम थी कि हमें कंप्लीट जो सेट फाइंड आउट करना है, उस सेट में हमें हमारे पास एक एक्टिविटी आ गई, ए की एक्टिविटी आ गई. तो अब हमारी जो प्रॉब्लम होगी वो 2 सब प्रॉब्लम में डिवाइड हो जाएगी. तो वो सब प्रॉब्लम क्या होगी कि आपकी जो सीरीज़ है, सेट है, द फर्स्ट सेट इज कंसिस्ट विद यूर स्टार्ट फ्रॉम द A1 टू AK-1 एक्टिविटी. आपको उसमें से सब प्रॉब्लम में से सिलेक्ट करनी पड़ेगी. और सेकंड सेट क्या बनेगा आपका AK+1 से लेके AN. आपकी उस पर्टिकुलर सेट में से आपको कॉम्पैटिबल एक्टिविटी फाइंड आउट करना है. डैट मीन्स हमारी प्रॉब्लम अब 2 सब पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी. एक सेट वो होगा,
एक सेट वो होगा जब आपकी एक ही एक्टिविटी स्टार्ट होती है उससे पहले वो एक्टिविटी आपकी फिनिश हो जाएगी। तो जो ये सेट है आपका A1 से लेके AK-1, इसमें जो आपकी कॉम्पैटिबल एक्टिविटी होंगी डेट मस्ट बी फिनिश बिफोर AK स्टार्ट। सेकंड सब प्रॉब्लम एक कौन सी प्रॉब्लम होगी, जो कि स्टार्ट होंगी जब आपका AK फिनिश हो जाएगा। जब AK फिनिश हो जाएगा उसके बाद जो भी जितनी भी एक्टिविटी होंगी वो हम इस पर्टिकुलर सेट से फाइंड आउट करेंगे। तो हमने अपना ऑप्टिमल स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया, कैरेक्टराइज किया कि हमने क्या किया कि सिंपली एक एक्टिविटी फाइंड आउट की। हमारे पास n नंबर ऑफ एक्टिविटी थी, उसमें से हमने एक एक्टिविटी फाइंड आउट कर ली कि आपके ऑप्टिमल सोल्यूशन में आएगी। तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, वो एक्टिविटी जो AK के स्टार्ट होने से पहले आएंगी तो वो होगी आपकी A1 से लेके AK-1। सेकंड पार्ट क्या होगा, जब AK फिनिश हो जाएगा उसके बाद भी कुछ ना कुछ तो सबसेट आएगा। तो वो सबसेट हमने क्या मान लिया, AK+1 से लेके AN, जो कि स्टार्ट कब होंगी, जब आपका AK फिनिश होगा। तो दैट इज़ द ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर ऑफ योर प्रॉब्लम। ऑलमोस्ट सेम है जैसे हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग में करे थे, स्टेप ऑलमोस्ट सेम है। अब सेकंड स्टेप क्या होता है आपका कि आपको एक रिकर्सिव सॉल्यूशन बनाना पड़ता है जो आपने सबस्ट्रक्चर बनाया। दैट इज स्टेप इज सेम जो हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग में करते थे। तो इसके लिए वी आर टेकिंग टू वेरिएबल हम बेसिकली यूज़ करेंगे। वन इज़ द SIJ एंड सेकंड वेरिएबल आपका यूज़ होगा CIJ। पहले हम SIJ पे आते हैं। तो SIJ मीन्स सेट है आपका, सबसेट है। उस सबसेट में वी आर सिंपली रिप्रेजेंट SIJ IJ। तो दो एक्टिविटी होंगी, वन इज़ द AI एंड सेकेंड एक्टिविटी क्या होगी आपकी AJ। ठीक है, तो SIJ मीन्स दैट इज द सबसेट ऑफ एक्टिविटी इन S दैट स्टार्ट आफ्टर AI फिनिश एंड फिनिश बिफोर AJ स्टार्ट। तो आपकी इस सबसेट में वो एक्टिविटी होंगी जो स्टार्ट होंगी, किसके बाद स्टार्ट होंगी, AI के फिनिश होने के बाद स्टार्ट होंगी एंड फिनिश होंगी जब आपका AJ स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आपके सबसेट में कौन सी एक्टिविटी होंगी, n नंबर ऑफ एक्टिविटी होंगी। वो एक्टिविटी क्या होंगी, वो एक्टिविटी होंगी जो कि आपकी AI एक्टिविटी के स्टार्ट होने के बाद होंगी एंड AJ एक्टिविटी के स्टार्ट होने से पहले होंगी। AI के फिनिश होने के बाद होंगी एंड AJ के स्टार्ट होने से पहले होंगी। आई मेकिंग क्लियर कि आपका SIJ है क्या। SIJ में n नंबर एक्टिविटी हो सकती है, मतलब n नंबर एक्टिविटी होंगी, सबसेट ऑफ एक्टिविटी होंगी, सबसेट ऑफ एक्टिविटी होंगी दैट स्टार्ट आफ्टर AI फिनिश एंड फिनिश बिफोर AJ स्टार्ट। आई थिंक दैट पॉइंट इज क्लियर कि आपकी उस सबसेट में वो एक्टिविटी होंगी जो AI के फिनिश होने से के बाद स्टार्ट होंगी एंड AJ के स्टार्ट होने से पहले वो एक्टिविटी आपकी फिनिश हो जाएंगी। तो उस सबसेट के लिए हमने वेरिएबल रिप्रेजेंट किया SIJ। अब SIJ इज सिंपली that will be select the maximum number of mutual compatible activity। SIJ आपकी maximum mutual compatible activity को select करेगा। तो we are taking a variable CIJ। तो CI is the size of the maximum size subset of mutual compatible activity in the SIJ। यहाँ पे जो नंबर ऑफ एक्टिविटी होंगी दैट मीन्स दैट उसको हम सिंपली कैलकुलेट कर रहे हैं CIJ में। अब यहाँ पे अगर आपका SIJ की वैल्यू नील है, SIJ अगर आपका नील है दैट मीन्स उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं है, तो उसकी वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होगी, उसकी वैल्यू आपकी 0 के इक्विवेलेंट होगी। अगर SIJ आपका 0 के इक्विवेलेंट नहीं है, नल के इक्विवेलेंट नहीं है वो सेट, दैट मीन्स कोई ना कोई तो एक एक्टिविटी होगी। तो उस केस में हम एक एक्टिविटी मान ली थी हमने AK एक्टिविटी। तो आपके पास एक एक्टिविटी आ गई थी, एक एक्टिविटी आ गई तो हमने इसको 1 कर दिया। अब आपके पास कितनी आपकी जो प्रॉब्लम है CIJ वो दो पार्ट में डिवाइड होगी। वन इज़ द CIK एंड सेकेंड पार्ट क्या बचेगा आपका CK, G।
तो डैट मीन्स इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी आपकी Cij की। डैट मीन्स हम एक एक्टिविटी मान लेते हैं, एक एक्टिविटी मान लेते हैं, तो हमने एक एक्टिविटी मान लिया इसलिए यहाँ पे आपका प्लस आया है। तो हमारी अब प्रॉब्लम दो पार्ट में, हमने लास्ट पार्ट में क्या था कि दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं कि के से पहले, डैट मीन्स के से पहले का मतलब के से स्टार्ट होने से पहले हो जाएंगे तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं Ci, के, एंड के बाद स्टार्ट होंगी तो के फिनिश होने के बाद स्टार्ट होंगी तो उसके लिए आपका क्या आ गया Ck, J। दैट मीन्स Cij ऑब्वियस है, मैक्सिमम वैल्यू लेंगे हम क्योंकि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये आपका एक रिकर्सिव फार्मूला बना। यहाँ your second step. Up to till now the step is remain same which we have done in the dynamic programming. So if you want to solve this problem using the dynamic programming, then we simply solve it using the bottom up, but we now solve this problem using the greedy method. So the third step in the greedy method, the third and fourth step in the greedy method is your कि we have to so that कि we have so that we make the greedy choice, then only one sub problem remains. After that we will prove that it is always safe to make the greedy choice. So I am coming on the third and fourth step. So in the third and fourth step, so this problem is obvious है, contain your greedy choice property that exhibits the greedy choice property. So we have basically solved, we have given the problem and we have solved in the according to the finishing order. So if I will say that कि what if you could choose an activity to add to our optimal solution without having to solve all the sub problem, मतलब बिना सब प्रॉब्लम को सोल्व किए आप कौन सी एक्टिविटी फाइंड आउट करोगे जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन में ऐड होगी। सो मीन्स आपको बिना सब प्रॉब्लम के सोल्व किए एक ऐसी एक्टिविटी फाइंड आउट करनी है जो आप सॉल्यूशन में उसको ऐड कर सकते हो। सो दैट मीन्स अगर मैं अगर फर्स्ट एक्टिविटी की बात करता हूँ, A1 एक्टिविटी की बात करता हूँ, तो A1 जो एक्टिविटी है वो सबसे पहले फिनिश हो रही है। दैट मीन्स उसके बाद जो भी हमारी प्रॉब्लम बचेगी तो प्रॉब्लम का केवल एक ही पार्ट बचेगा, वो पार्ट क्या होगा, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड एक्टिविटी टू द लास्ट एक्टिविटी। अब A1 के बाद जो भी एक्टिविटी कंपैटिबल होंगी वो हमारे सॉल्यूशन में ऐड होती जाएंगी। सो वी कैन से दैट हमारी जो प्रॉब्लम है दैट प्रॉब्लम इज कंटेनिंग ए ग्रीडी चॉइस। हम उस ग्रीडी चॉइस में कौन सी एक्टिविटी कंसीडर कर लेते हैं कि दैट ग्रीडी चॉइस इज योर A1। तो हमारी ग्रीडी चॉइस में पहला हम यही स्टेप बोलते हैं कि यू विल लुक द बेस्ट चॉइस एट दैट मोमेंट। उस मोमेंट पे जो आपकी बेस्ट चॉइस होगी उस लोकल चॉइस को हम चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो लोकल चॉइस है जो बेस्ट आपको दिख रही है इस मोमेंट पे, दैट इज़ द A1। तो A1 आपके पास वो एक्टिविटी है जिसको आप चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने बिना प्रॉब्लम को सोल्व आउट किए वी हैव सिलेक्टेड एक्टिविटी A1। सो यहाँ दैट इज़ योर थर्ड स्टेप कि अगर आप कोई ग्रीडी चॉइस चूज़ करते हो तो इन दैट केस आपके पास केवल वन सब प्रॉब्लम ही रिमेन रहती है। दैट सब प्रॉब्लम इज योर कि A1 फिनिश होने के बाद जो भी एक्टिविटी होंगी वही आपके सॉल्यूशन में ऐड होंगी। So there is an optimal solution to the sub problem Sij that can include the activity with the smallest finish time in the set Sij। तो हम यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि we are simply at the A1 activity। तो इसको हम easily प्रूव कर सकते हैं कि आपका एक पास एक ही सब प्रॉब्लम होगी। दैट मीन्स जो भी आपके पास अब एक्टिविटी आएंगी वो एक्टिविटी कौन सी बचेगी, जो फिनिशिंग टाइम ऑफ A1 होगा उसके बाद जो एक्टिविटी आपकी स्टार्ट होंगी दैट विल बी इंक्लूड इन योर ऑप्टिमल सोल्यूशन। So there is an optimal solution to the S such that which will include your A1, जो A1 एक्टिविटी को include करेगा। Therefore we make the greedy choice without solving the sub problem and simply add the A1 activity in our optimal solution.
तो यहाँ पे हमने बिना सब प्रॉब्लम को सोल्व किए एक एक्टिविटी फाइंड आउट की है, A1 एक्टिविटी फाइंड आउट की है, जिसको हम अपने सोल्यूशन में फाइंड आउट करेंगे। सो ऑब्वियस है, अब अगेन हम सेम सब प्रॉब्लम को अगेन सोल्व आउट करेंगे, उसमें से फिर ग्रीडी चॉइस सेलेक्ट करेंगे एंड दैट ग्रीडी चॉइस विल बी एड इन योर ऑप्टिमल सोल्यूशन विदाउट सोल्विंग द सब प्रॉब्लम। हमने बिना सब प्रॉब्लम को सोल्व आउट ही एक्टिविटी फाइंड आउट की। सो सेम अगेन हम सब प्रॉब्लम को सोल्व आउट करते जाएंगे, ग्रीडी चॉइस सेलेक्ट करते जाएंगे, जितनी भी आपके पास ग्रीडी चॉइस होगी दैट विल बी कंसिडर एज द सब प्रॉब्लम ऑफ योर प्रॉब्लम। सो यहाँ पे आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड कि आपने बिना सोल्व आउट के एक ग्रीडी चॉइस को सिलेक्ट किया। जब आप ग्रीडी चॉइस को सिलेक्ट करोगे तो एक ही आपके पास सब प्रॉब्लम बचेगी। अब जब आप उस सब प्रॉब्लम को सिलेक्ट करोगे तो सेम यू विल सिलेक्ट अगेन ग्रीडी चॉइस, आपके पास एक ही ग्रीडी चॉइस होगी, उसको सिलेक्ट करके अगेन यू विल सोल्व आउट अगेन एंड अगेन। सो आई विल टेक द एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल जो आपका है दैट इज द सेम, यही सेम आपका वैल्यू हम यूज़ करेंगे। तो जस्ट नोट डाउन द टाइम, फिनिशिंग टाइम एंड स्टार्टिंग टाइम ऑफ ईच एक्टिविटी। सो हमारे फर्स्ट सोल्यूशन क्या होगा, A1 होगा, फिर क्या बचेगा हमारा A2 से A11 हम एक्टिविटी ऐड करेंगे, फिर नेक्स्ट वन एंड सो ऑन। सो आई विल टेक द एग्जाम्पल। सो इस एग्जाम्पल को करने के लिए दैट इज़ द डायग्राम की हेल्प से हम इसको एक्सप्लेन करें। सो दैट इज़ योर टाइम, ये आपके पास टाइम गिवन है नीचे स्लॉट में। सो दैट इज़ द एक्टिविटी के से हम एक्टिविटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। S इज़ द स्टार्टिंग टाइम, F is the finishing time. So we are start with the first activity A0. A0 means आपकी जो फिनिशिंग टाइम है A0 का वो 0 मान रहे हैं, तो उसका कोई भी स्टार्टिंग टाइम नहीं है, इसलिए वहाँ वैल्यू आपके पास माइनस में है एंड द फिनिशिंग टाइम इज योर 0। मतलब हम सिंपली एक एक्टिविटी दैट विल बी नॉट इंक्लूड योर आंसर, वी विल सिंपली कि आपको वो एक्टिविटी फाइंड आउट करेंगे जो A0 से कंपैटिबल होगी। तो A0 आपका फिनिश हो रहा है 0 पे। तो नाउ वन बाय वन हम एक्टिविटी लेते जाएंगे। तो एक्टिविटी आपकी सॉर्टिंग ऑर्डर में है, पहले हम A1 लेंगे, फिर A2, A3। तो K की वैल्यू आपकी 1 हुई, दैट मीन्स फर्स्ट एक्टिविटी हुई आपकी, दैट इज द फर्स्ट एक्टिविटी। फर्स्ट एक्टिविटी का स्टार्टिंग टाइम अगर आप नोट डाउन करो तो उसका था स्टार्टिंग टाइम 1, फिनिश टाइम था उसका आपका 4। सो दैट एक्टिविटी ऑब्वियस है कंपैटिबल होगी, तो कंपैटिबल होगी तो वी विल सिंपली ऐड इन टू अवर सोल्यूशन, उसको हम अपने सोल्यूशन में ऐड करेंगे। तो A1 आपकी सोल्यूशन में ऐड होगी, तो उसका स्टार्टिंग टाइम है आपका 1, स्टार्टिंग टाइम अगर आप नीचे से देखो 1 एंड फिनिशिंग टाइम है उसका आपका 4। तो A1 आपके आंसर में ऐड होगी। नाउ A1 ग्रीडी चॉइस हमने ऑप्ट की है, क्योंकि A1 आपकी विदाउट सोल्व आउट के प्रॉब्लम में A1 को अपने सोल्यूशन में ऐड किया। रीज़न बीइंग कि A1 आपके पास वो एक्टिविटी हुई जो सबसे पहले फिनिश होगी, तो ऑब्वियसली दैट विल बी इन योर आंसर। अब आपको क्या करना है, अब A1 आपके सोल्यूशन में आ गया, अब आप अगेन एक सेकंड, थर्ड, फोर्थ एक्टिविटी पे जाओगे जो उसके साथ कंपैटिबल होगी, उसको हम आंसर में ऐड कर देंगे। सो दैट इज़ योर, ये आपका रिकर्सिव फार्मूला है, कॉलिंग है, जिसमें हम 0 से लेकर 12 एक्टिविटी को कॉल करें। इसकी एक्सप्लेनेशन अभी लेटर ऑन करेंगे। तो सेकंड एक्टिविटी पे गए, सेकंड एक्टिविटी का स्टार्टिंग टाइम आपका है 3, फिनिशिंग टाइम है उसका आपका 5। तो वेदर यू विल फाइंड आउट कि क्या A1 A2 आपका, क्या आपका A2 आपका A1 के साथ कंपैटिबल है। सो A2 इज नॉट कंपैटिबल विद योर A1, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग टाइम है वो 3 है एंड द फिनिश टाइम ऑफ फर्स्ट एक्टिविटी क्या आपका 4। सो दैट इज नॉट कंपैटिबल, तो इसको हम ऐड नहीं करेंगे। नाउ कम ऑन द थर्ड एक्टिविटी। थर्ड एक्टिविटी भी गए, थर्ड एक्टिविटी भी आपकी कंपैटिबल नहीं है, रीज़न बीइंग उसका स्टार्टिंग टाइम 0 है, फिनिशिंग टाइम उसका आपका 6 है, तो दैट इज आल्सो नॉट कंपैटिबल। अब हम नेक्स्ट K की वैल्यू को इंक्रीज करके फोर्थ एक्टिविटी पे गए, स्टार्टिंग टाइम 5, फिनिशिंग टाइम 7। अब फाइंड आउट करो क्या वो कंपैटिबल है, द आंसर विल बी यस।
आंसर आपका यस होगा, मीन्स A4 आपकी compatible है A1 के साथ। सो वी विल ऐड इन द आंसर इन द जो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन बना उसमें हमने इसको ऐड किया। तो एक टाइप से A4 आपकी ग्रेडी चॉइस है, 2, 3, 4 में से ग्रेडी चॉइस आपकी एक टाइप से 4 आई, तो 4 को हम अपने सोल्यूशन में ऐड करेंगे। नाउ कम ऑन द पार्ट, अब आपका 4 आपका ऐड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब जब 4 के बाद आपकी कॉलिंग आई है तो 4,12 लास्ट एक्टिविटी अप टू 11 है, तो 11 + 1 कर देते हैं हम 12, तो 4 से लेके 11 पे आपकी कॉलिंग गई। अब 4 के बाद नेक्स्ट एक्टिविटी क्या होगी आपकी 5, चेक करो। अब कंपैटिबिलिटी किससे चेक करेंगे हम, A4 से चेक करेंगे। 4 को 5 से कंपैटिबल चेक करो, डेट इज़ नॉट कंपैटिबल। 6 को चेक करो, डेट इज़ आल्सो नॉट कंपैटिबल। 7 को चेक करो, डेट इज़ आल्सो नॉट कंपैटिबल। A8 को चेक करो, डेट इज़ आल्सो कंपैटिबल, वो A4 के साथ कंपैटिबल है। तो वी विल ऐड द आंसर इन अवर प्रॉब्लम, हम इसको ऐड कर देंगे। फिर ऐड करने के बाद अब नेक्स्ट पार्ट आपका 9 के लिए जाएगा, 9 इज़ नॉट कंपैटिबल, 10 इज़ आल्सो नॉट कंपैटिबल, 11 इज़ योर कंपैटिबल, तो वी विल ऐड द 11 इनटू अवर सॉल्यूशन। सो 11 के बाद 12 ऑब्वियस है लास्ट, वो एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी हमने इंक्लूड किया जिसका फिनिशिंग टाइम कभी स्टार्ट ही नहीं हुई, तो स्टार्टिंग टाइम इसका इन्फिनिटी है। सो डैट विल बी योर फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो फाइनल आंसर में आपके पास आया है A1, A4, A8 एंड A11। सो डैट इज़ द एग्जाम्पल कि हाउ वी हैव सोल्व द एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम। सो जो हमारा फोर्थ स्टेप था, द फोर्थ स्टेप इज यूर कि वी हैव मेक द रिकर्सिव एल्गोरिथम। तो रिकर्सिव एल्गोरिथम इज सिंपली यूर स्टार्टिंग टाइम हम वेरिएबल पास कर रहे हैं, फिनिशिंग टाइम वेरिएबल पास कर रहे हैं, I एंड J एक्टिविटी पास करी है। I की वैल्यू स्टार्टिंग में वी हैव टेक उसकी वैल्यू 0 ली है इनिशियल वैल्यू, एंड J की जो इनिशियल वैल्यू ली है वो हमने n+1 ली है। मतलब स्टार्टिंग में हमारे पास 11 एक्टिविटी थी, तो हमारे पास इनिशियल कॉल किसके लिए जाएगी, स्टार्टिंग टाइम जाएगा, फिनिशिंग टाइम जाएगा। I की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 जाएगी जिसका फिनिश टाइम 0 है, एंड n+1 के मतलब क्या होगा, आपके पास वैल्यू क्या गई थी, 12 गई थी। सो वी विल 1 बाय 1 हम फर्स्ट एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटी से स्टार्ट करने के लिए हमने m एक वेरिएबल लिया है, m की वैल्यू को i+1 किया। i+1 का मतलब हो जाएगा फर्स्ट एक्टिविटी पे जाएंगे, तो हमारा जब तक लूप चलेगा जब तक m इज़ योर <2 j एज वेल एज जो स्टार्टिंग टाइम ऑफ m है वो आपका लेस देन है फिनिशिंग टाइम ऑफ i एक्टिविटी से। तो m ऑब्वियस है, जो फर्स्ट एक्टिविटी है उसका स्टार्टिंग टाइम आपका 0 है, तो m एक टाइप से हम कह सकते हैं S0 से इनिशलाइज हो रहा है। तो जब तक कि आपका ये लूप ट्रू होगा, जब तक ये कॉलिंग होगी आपकी, तो इन डैट केस वी हैव सिंपली इंक्रीज द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू को m+1 कर दिया। नाउ वी विल सिंपली कंपेयर द m को हम j से कंपेयर करेंगे। अगर वो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है तो वो एक्टिविटी आपकी ऐड हो जाएगी, am आपका ऐड हो जाएगा। अब am तो आपका ऐड हो गया, बट अब सेम प्रॉब्लम को हम कॉल करेंगे, तो अब आपकी am एक्टिविटी ऐड होगी। अगर मैं इसको सिंपली एग्जांपल से करूँगा, फर्स्ट एक्टिविटी कौन सी ऐड होगी थी, आपकी A1 एक्टिविटी ऐड होगी थी। A1 एक्टिविटी ऐड होगी थी तो आपकी कॉलिंग किससे गई थी, 1,12 पे। तो यहाँ पे सेम रिकर्सिव फार्मूला को फंक्शन को कॉल करेंगे, s, f, i की जगह वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, m एंड j। तो am एक्टिविटी आपकी ऐड हो जाएगी, एंड वी आर सिंपली कॉल अगेन दिस फंक्शन। हम इस सेम फंक्शन को कॉल करेंगे विद डिफरेंट पैरामीटर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन इट्स रिकर्सिव कॉल गया, अदरवाइज हम वैल्यू को नील रिटर्न करेंगे। तो ये आपकी जो एक टाइप से रिकर्सिव कॉल है वो n नंबर ऑफ एक्टिविटी के लिए जाएगी। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप फाइंड आउट करोगे वो आपकी θn ऑफ आएगी। सो दैट इज़ द रिकर्सिव एल्गोरिथम। अगर आप इसको जो हमने एग्जांपल किया उससे अब थोड़ा सा फाइंड आउट करोगे तो ऑलमोस्ट आपके पास सेम कंसेप्ट निकल के आएगा। तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में हमारे कॉल किया है 0,12 के लिए। जब ये एक्टिविटी आपकी ऐड होगी तो कॉलिंग किसके लिए गई आपकी 1,12 के लिए।
जब A4 आपकी कॉल होगी तो कॉलिंग किसके लिए की आपकी 4,12 के लिए। जब आपकी A8 कॉल होगी तो कॉलिंग किसके लिए गई आपकी 8,12 के लिए। जब आपका 11 एक्टिविटी ऐड हुई तो कॉलिंग किसके लिए गई आपकी 11,12 के लिए। सो आई थिंक यू विल क्लियर आउट कि कैसे आपकी रिकर्सिव कॉल हो रही है। जो हमारा लास्ट स्टेप होता है, हमने रिकर्सिव एल्गोरिथम जो किया था उसको इटरेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। सो उसको कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आपको लूप लेना है। सो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी तो ऑटोमेटिक ऐड हो जाती है, तो हमारा लूप चलेगा 2 से लेके n तक। सो आई एम रिपीटिंग, स्टार्टिंग टाइम दिया हुआ है, फिनिशिंग टाइम दिया हुआ है, वी आर फाइंड आउट द लेंथ ऑफ n। सो वी आर इंक्लूड द फर्स्ट एक्टिविटी A1 हमने अपने सोल्यूशन में ऐड किया, तो हमारा लूप चला, i की वैल्यू 1 से इनिशलाइज हुई क्योंकि A1 आपका ऑलरेडी सोल्यूशन में आ गया, तो लूप चला आपका 2 से लेके n तक। तो स्टार्टिंग टाइम ऑफ जो हमारी कंडीशन थी, अगर स्टार्टिंग टाइम ऑफ m इज योर greater than equal to f of I, then we are simply add the am को हम ऐड कर देते हैं, a is equal to a union of am and I की वैल्यू आपकी सिंपली इक्वलेंट हो जाती है m से। तो ये लूप चलता जाएगा आपका जब तक वैल्यू आपकी m की वैल्यू n के इक्वलेंट नहीं हो जाती। जो फाइनल आंसर होगा वो आपका a होगा। सो दैट इज द लास्ट स्टेप जिसमें हमने रिकर्सिव एल्गोरिथम को वी आर सिंपली कन्वर्ट इनटू द इटरेटिव। मतलब यहाँ पे भी आपका अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा जो लूप चलेगा वो हमारा लूप चलेगा अप टू 11 तक। तो सेम यहाँ पे भी है वही सेम पार्ट किया। तो दैट इज़ द लास्ट स्टेप, ये आपका लास्ट स्टेप है। यूजिंग दिस लास्ट स्टेप वी हैव सिंपली फाइंड आउट द कि ये हाउ वी विल सोल्व आउट द एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम।